पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन पिछला उनका जो शो था मेनोपॉज का, विच वॉज अ सुपर डुपर हिट. 2 reasons. One, the show was very good, the content was very good, and second, मैम उस दिन बहुत प्रिटी लग रही थी. आज नहीं लग रही. Today also, super ma'am, you're looking very pretty. So first of all, welcome ma'am to 778th episode. It's such an honor to meet every Wednesday a doctor who is, have so much concern for women health and women care. Yeah. डॉक्टर शांतला बोले, गायनेकोलॉजिस्ट, नागपुर शहर की जानी मानी, हमारे साथ हैं. मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेनोपॉज का शो को इतना बड़ा वेलकम मिला. द शो वेंट वायरल, 8000 से ज्यादा ऑर्गेनिक व्यूज मिलना, आपको कितना अच्छा लगा? Of course, बहुत अच्छा लगा. It also means कि what we are discussing is relevant and that should be our aim. ना, जब भी हम लोग when we talk on this show, जी, whatever we are speaking should connect to our viewers. जी. And it should help them. थोड़ा we try to inform, educate, and also give them छोटे-छोटे टिप्पणियाँ देने की कोशिश करते हैं, so that they can deal with common problems with information. तो मैम, ये जो आज का जो टॉपिक है, which is all about पेन इन पीरियड्स एंड कॉमन प्रॉब्लम्स, तो मैम इसके ऊपर में प्लीज अगर आप अपनी बात रखें. Thank you, Raj, and I think congratulations to you too, because you're slowly inching towards the magic number. Yes, ma'am. I think soon you'll reach 800 and then more, maybe more. Thank you so much, ma'am. Also thank you to all the viewers for all the comments and the feedback that you've given us. आज का टॉपिक है, in fact we're going to deal with 2 topics related to periods. One is pain, period pain, और दूसरा है PMS या pre-menstrual syndrome. जी. And as we all know, or maybe you do not know, that women actually plan their life according to their periods. जब एग्जाम है, कहीं बाहर जाना है, घर में कोई फंक्शन है, तो एक बैक ऑफ द माइंड में वो they start calculating, is it going to be that time of the month? जी. And ये और भी difficult होता है if you have pain during periods. Pain अगर है, discomfort है, and आपको पता है almost 70% of women experience some sort of discomfort या pain. जी. So for some women it is very mild, कुछ घंटों की थोड़ी सी तकलीफ, discomfort, and it goes away. But for some women it is so bad कि उनको छुट्टी लेनी पड़ती है, वो अपने काम नहीं कर पाते हैं, उनको 1-2 दिन छुट्टी लेके घर पे रुकना पड़ता है, या they have to take medications. जी. And for some women pain के साथ साथ में they may experience nausea, vomiting, diarrhea, headache, migraine, etc. also. जी. So then that becomes a little it sort of complicates our life and impacts our life, I feel. So इसमें जैसे मैंने कहा almost 70% लड़कियों को कुछ प्रकार का डिस्कम्फर्ट होता है. किसी को शुरुआत से होता है, उसे हम प्राइमरी डिस्मेनोरिया बोलते हैं. So that is quite normal. It starts with your periods, 2-3 दिन रहता है, and then it goes away after the periods are over. But for some women we need to be aware कि आपको पहले पेन नहीं होता था और अभी all of a sudden आपको पेन हो रहा है, या पहले थोड़ा सा होता था और अभी बहुत ज्यादा पेन हो रहा है. So it's always important to consult a doctor to see कि कोई दूसरा प्रॉब्लम तो नहीं है. Because there are certain conditions, like endometriosis या adenomyosis. Basically endometriosis मतलब जो यूट्राइन का जो अंदरूनी लेयर है endometrium, वो it grows outside the uterus and in other parts of the body, जिसकी वजह से बहुत पेन हो सकता है. So अगर आपको पेन नहीं था और अभी होने लगा है, तो that might be a time to consult your doctor. And I've seen that with women, they generally don't go to the doctor. कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, घर में फैमिली रिलेटिव से बात करेंगे या फ्रेंड से बात करेंगे, या आजकल तो है ही गूगल कंसल्ट करेंगे. आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. गूगल इज अ वेरी गुड प्लेस फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन. पर अगर आपको स्पेसिफिकली कुछ मेडिकेशन चाहिए या आपको कुछ ट्रीटमेंट चाहिए, आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार डॉक्टर को कंसल्ट जरूर कीजिएगा. एंड वी हैव लॉट ऑफ गुड ऑप्शंस आल्सो फॉर पेन. एक ये कंसेप्ट होता था कि ड्यूरिंग पीरियड्स बहुत सारी चीजें खाना नहीं चाहिए, इससे पेन बढ़ेगा या ब्लीडिंग बढ़ेगा, विच इज एक्चुअली नॉट ट्रू. बट हाँ, अगर आपको कोई चीजों से अगर तकलीफ होती है तो ट्राई एंड अवॉइड देम. जैसे सम पीपल आई हैव सीन सम women are allergic to besan या some types of dals, वो खाने से उनको बहुत तकलीफ होती है. So maybe you can avoid. And regarding certain food items, like it has been seen कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते कंज्यूम करते हैं, they are more prone to having dysmenorrhea. Also high salt and high sugar food, उसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो it will be easier for you to handle your periods. And we as doctors give very good antispasmodic medication है जो आप ले सकते हो, which will reduce your pain. Sometimes अगर बहुत सीवियर पेन है तो हम लोग शॉर्ट कोर्स ऑफ हार्मोनल ट्रीटमेंट भी देते हैं 3 to 6 months के लिए, so that the pain is reduced. Regarding फूड एंड एक्सरसाइज,
दैट ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, बिकॉज आई हैव सीन दैट मेनी पीपल थोड़ा सा वो मॉडिफिकेशन करेंगे फूड में, स्पेशली कोई डेफिशिएंसी अगर है उसको करेक्ट करेंगे तो पेन कम होता है. एंड एक्सरसाइज एंड योगा इज वेरी हेल्पफुल इन डीलिंग विद दिस इंटेंसिटी ऑफ पेन. अगर पेन इवन 50% अगर इंटेंसिटी कम हुआ, इट बिकम्स बेरेबल फॉर यू. एंड सर्टन फूड सप्लीमेंट्स जो मैं मतलब विच आई वुड लाइक टू सजेस्ट इज, अगर आपको पेन हो रहा है, ट्राई टेकिंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स. कुछ प्रकार के विटामिन बी, जैसे विटामिन B6 है, इट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल इन रिलीविंग पेन. एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. तो हो सके तो आपके खाने में आप ये सब चीजें इंक्लूड कीजिए. अगर नहीं हो पा रहा है तो यू कैन टेक सप्लीमेंट्स विच विल हेल्प यू डील विद डिस्मेनोरिया. सो यू डोंट हैव टू बी वरिड अबाउट कि मेरा कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट है और मुझे अगर पीरियड आया तो मैं क्या करूंगी, हाउ विल आई डील विद इट. एंड व्हेन इट कम्स टू पेन मेडिकेशन, एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि पेन जैसे शुरू होता है तभी मेडिसिन ले लेना, कि वंस द पेन साइकिल इज एस्टैब्लिश्ड, फिर वो मेडिसिन को एक्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है. सो डोंट वेट फॉर द पेन टू बिकम सीवियर, कि हाँ मैं थोड़ी देर देख लेती हूँ, अगर ज्यादा हुआ तो लूंगी. अगर आपको पता है कि पीरियड्स में आपको पेन होता है और हर महीने होता है, तो जैसे पेन शुरू हुआ प्लीज टेक द मेडिकेशन सो यू विल बी रिलीव फ्रॉम द पेन. मैम जो हमने पिछली बार भी बात करी मेनोपॉज को लेकर, मैम क्या मेनोपॉज के दौर में भी इस किस्म का एक पेनफुल या एक ऐसा कुछ दौर आता है जब यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर और यू हैव टू टेक सम प्रिकॉशंस? सो नॉर्मली मेनोपॉज में पेन, मतलब अगर पहले से आपको पेन कभी नहीं हुआ तो नॉर्मली मेनोपॉज में पेन नहीं होता है. अगर आपको पेन शुरू हो गया है, तो जैसे मैंने प्रीवियस कुछ कंडीशंस के बारे में बताया, जैसे एंडोमेट्रियोसिस, ये हो सकता है, तो यू शुड गेट चेक. फाइब्रॉइड्स, यानी देयर इज ग्रोथ इन द यूट्रस, जनरली पेन होता नहीं है फाइब्रॉइड से. So even if you have a small growth in the uterus does not mean that you should have pain. पर अगर पेन अगर हो रहा है, you should get checked. कभी कभी इन्फेक्शन भी हो सकता है, pelvic inflammatory disease हम बोलते हैं, उसकी वजह से भी पेन हो सकता है. तो मेनोपॉज की वजह से नॉर्मली पेन नहीं होता है. अगर हो रहा है तो प्लीज गेट कंसल्ट अ डॉक्टर. ओके मैम, जो हमारा दूसरा टॉपिक है आज का, उसके ऊपर मैं अगर सो PMS, आई थिंक आजकल सबको पता है. We have seen also in many serials and all. अगर एक लड़की चिड़चिड़ कर रही है तो people ask them, oh, are you PMSing? This seems to be the common term that's used. So what is PMS? It is nothing but premenstrual syndrome. So ऐसे देखा गया है कि just before the periods, 3 to 4 days before the periods, women can experience some physical and emotional, दोनों होते हैं उसमें. फिजिकल में सेंसेशन ऑफ ब्लोटिंग, पूरा ऐसे स्वेलिंग आया जैसा लगता है. फिर जनरल ऐसे वेग किधर दर्द हो रहा है, कोई जॉइंट पेन हो रहा है, या सम वुमेन में एक्सपीरियंस कॉन्स्टिपेशन या डायरिया. एंड इमोशनल सिम्टम्स जैसे चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, एंजाइटी, भूख नहीं लगना. किसी को बहुत फूड क्रेविंग्स होते हैं, दे हैव दिस क्रेविंग टू ईट सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड. सो दिस कैन ऑल फॉर्म अ स्पेक्ट्रम ऑफ PMS या प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम. नॉर्मली ये माइल्ड रहता है, 1-2 दिन थोड़ा सा महसूस करते हैं, एंड देन आफ्टरवर्ड्स वंस द पीरियड स्टार्ट्स वो अपने आप ठीक हो जाता है. बट इन 5% केसेस इट कैन बी वेरी सिवियर, मतलब इट कैन बी सो सिवियर कि वो बेड से उठ ही नहीं पाती है. देयर इतना मूड उनका लो होता है कि दे आर वेरी डिप्रेस्ड एंड वेरी एंशियस. सो इट कैन बी क्वाइट सिवियर. बट नॉर्मली ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम्स 90-95% ऑफ द टाइम सिम्टम्स आर माइल्ड एंड वो अपने आप ठीक हो जाते हैं. मैम, व्हेन यू टॉक अबाउट फूड हैबिट्स, मैं दोनों ही वक्त पे बात करूंगा. एक तो मैम PMS के टाइम पे भी कि जब इस किस्म के इशू हों तो क्या फूड हैबिट्स होने चाहिए. हेल्दी फूड हैबिट्स डेफिनेटली आप वही बोलने वाली हैं, लेकिन मैम फिर भी आजकल जो फूड चीट चलता है, हम उसको भी ध्यान में रखते हुए व्हाट शुड वुमेन ईट. यस, सो व्हाट, दिस इज एक्चुअली अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन, बिकॉज I was talking to a group of girls, a group of women actually, जो working women, about this topic. And one person said कि मैम हमने पढ़ा है कि PMS प्रिवेंट करने के लिए चॉकलेट खाना चाहिए, तो हम लोग बहुत चॉकलेट खाते हैं. I said I'm sure कि आपने बहुत सारी चीजें पढ़े होंगे about what you should do and what you should not do, but you picked up that one thing about chocolate. So बेसिकली डेफिशिएंसीज अगर है तो करेक्ट करना चाहिए. जैसे मैंने पहले बोला ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, ये देखा गया कि इफ यू टेक सप्लीमेंट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम तो थोड़ा सा PMS के सिम्टम्स कम होते हैं, प्लस विटामिन्स एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. हाँ, अगर आपको चॉकलेट पसंद है तो खाइएगा, बट दैट इज नॉट द ट्रीटमेंट फॉर PMS. इट कैन बी वन ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन टेक, और आपको अगर अच्छा लगता है ड्यूरिंग योर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, फाइन. बट यू नो कि चॉकलेट कैन ऑल्सो ट्रिगर माइग्रेन.
एंड देयर आर सम वुमेन हु एक्सपीरियंस माइग्रेन आल्सो. सो आप ट्रायल एंड एरर करके देख सकते हो. व्हाटएवर सूट्स यू. अगर इफ समथिंग इज वर्किंग फॉर यू, फाइन, गो अहेड. बट डेफिनेटली यू शुड कट डाउन अपॉन कैफीन, चाय, हाई शुगर, high salt, and even alcohol. And also Diet Coke. Diet Coke. So मैम, ये जो आप जब ये कहती हैं आपकी एक हेल्थी डाइट भी रहना चाहिए, वहीं पे मैम अगर हम वर्कआउट्स की बात करें, क्योंकि मैम आजकल डॉक्टर केविन अग्रवाल ऑल्सो सेड दैट बेबी को जिम पसंद है. तो जिमिंग करना, वर्कआउट्स करना, वॉक पे जाना, योगा करना, मेडिटेशन करना, इन चीजों के ऊपर में कितना असर होता है? डेफिनेटली होता है. आई थिंक बेबी को जिम पसंद है. वाज अ वेरी नाइस टॉपिक एंड आई लाइक लिसनिंग टू द टॉक आल्सो. एंड अगर आपको जिम जाने से अच्छा लगता है, प्लीज डू इट. एंड इट हैज बीन सीन कि बाय एक्सरसाइजिंग एक्चुअली दोनों पेनफुल पीरियड्स और पीएमएस दोनों के सिम्टम्स आप कंट्रोल कर सकते हो. बेसिकली व्हेन यू एक्सरसाइज यू रिलीज एंडोर्फिन्स, द हैप्पी हार्मोन्स, सो दे काउंटरैक्ट द अनहैप्पी. The reason why PMS happens is because जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है बिफोर द पीरियड्स. जी. That is one theory कि इसकी वजह से PMS होता है. Definitely exercise helps. एंड योगा में भी कुछ आसन है स्पेशली मेंशन किया है फॉर पेनफुल पीरियड्स दैट यू शुड ट्राई डूइंग इट. एंड ऑफ कोर्स मेडिटेशन रियली हेल्प्स इन PMS. बट ये सब चीजें करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं, इवन देन योर मूड इज नॉट इम्प्रूविंग, आपका डिप्रेशन बढ़ रहा है, तो प्लीज टेक ट्रीटमेंट फॉर दिस. इट इज बीन सीन कि स्पेशली जो ऑलरेडी डिप्रेस्ड है, जिनका बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, जिनको बहुत पीपल हु डोंट हैव टाइम टू रिलैक्स एंड जस्ट चिल फॉर सम टाइम, इनमें ज्यादा PMS होता है. एंड जिनको PMS है विद एज, उनका थोड़ा सा मेनोपॉज जब वो पहुंचते हैं, दे माइट ऑल्सो बी प्रोन टू डिप्रेशन. सो अगर आपको लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 months आपका ये सब मेजर्स आप कर रहे हो, आप सही खाना खा रहे हो, आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, पर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि बहुत सिग्निफिकेंट बेनिफिट नहीं मिला है, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन टेकिंग मेडिकेशंस. टेक द हेल्प ऑफ अ डॉक्टर, टेक द राइट मेडिकेशंस एंड इट विल डेफिनेटली गो अ लॉन्ग वे इन हेल्पिंग आउट. मैम, दिस वुड बी माय लास्ट क्वेश्चन टू यू. मैम, बहुत सारे लोग दे स्पेशली लेडीज दे प्रेफर avoiding going to the doctor. Avoid, ये avoid ये शब्द बिल्कुल मैम महिलाओं पे सबसे ज्यादा अप्लाई होता है कि दे अवॉइड, दे थिंक कि एक पेन किलर खा लेती हूँ मैं, है ना, या फार्मेसी वाले के पास जाकर फार्मेसी वाले को कहूँगी PMS इशू है, वो मुझे कोई पिल दे देगा या कोई पेन किलर दे देगा. मैम, इज इट द राइट वे टू टेक थिंग्स? ये जो अवॉइड शब्द है, ये कितना? डेफिनेटली नॉट ना. सही, डेफिनेटली नॉट. सी, व्हेनेवर वी प्रिस्क्राइब सम मेडिसिन, हम पूरा हिस्ट्री एग्जामिनेशन करने के बाद आपको कुछ मेडिसिन देते हैं. जी. द फार्मेसी पर्सन मे नॉट नो योर हिस्ट्री. यू माइट बी एलर्जिक टू सर्टेन मेडिकेशन, यू माइट हैव टू अवॉइड सम मेडिकेशन. सो आई थिंक कि अगर आपको बहुत तकलीफ हो रही है, हाँ, इनिशियली होम रेमेडीज आप ट्राई कर सकते हैं फॉर बोथ पेनफुल पीरियड्स ऑल्सो, और इसके लिए कि खाने में थोड़ा चेंज किया, पेनफुल पीरियड के लिए हीटिंग पैड रख लिया, कुछ एक्सरसाइजेस किए. पर अगर नहीं हो रहा तो एक बार डॉक्टर को दिखा दीजिए. डोंट टेक द मेडिकेशन दैट योर फ्रेंड इज टेकिंग. वो मेडिसिन उनके लिए है, आपके लिए नहीं है. सो वी नीड टू बी लिटिल केयरफुल अबाउट दिस कि अगर ये सब मेजर्स होम रेमेडी से ठीक नहीं हो रहा है तो प्लीज कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट. बट मैम, डू यू सपोर्ट होम रेमेडीज? यस, टू सर्टेन एक्सटेंट होते हैं, दे डू वर्क. हाँ, दादी नानी के रेमेडीज डू वर्क, जी. या कई बार ऐसे भी तो होता है मैम, दादी नानी की वजह से आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं. These remedies, no, it has been proven, मैम. During COVID, there have been so many times where home remedies did not work. तो थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं तो क्यों नहीं? Why not? Depends on the situation. For painful periods, it does work. Okay. छोटे-मोटे खाने पीने के changes or whatever they give you at home. पर अगर नहीं हुआ सर, please consult a doctor. Super. I think today, specifically on painful periods and PMS, it was a great learning session. I've got messages. Trupti Kamdar is saying very informative. Oh, hi, thank you. Bhavi. Nice to see you here. She's saying it. Then Dr. Amol Kadu is watching the show. He's saying it's a very informative, Shantla ma'am. It's a very, and I'm sure this will also reach to a good number. 8,000 cross करेगा ये भी आपका